اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتے ہیں درختوں کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے. اس مختلف سوال کرتا ہے, تم اللہ کہتے ہو, اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا, اس کو کوئی بنائے گا, تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. یہ تو ہے. کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ. ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ. ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਗੋਡ ਕਮਸ ਫਰੋਮ. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗੋਡ, ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ अपने विचार भी दिया करो. आजो करते हैं जी स्टार्ट. तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से. हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं. देखिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें. यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 2 + 2 = 4. ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहे हैं. आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी. बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है. आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है. लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया. हम जिस एरा में बैठे हैं ना ये नजरिया खत्म हो चुका हुआ है. आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से ही, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है. तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई होगी. यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे. और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे. ये तो एक नेचुरल चीज है. अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था. वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इन्फिनिट है. इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया. ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ. ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਆ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ.
और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है। वही है ना, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद है, हर सियारे के एतबार से है, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट स्पीड। तो चलो ये वीडियो पुरानी होएगी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੈ। एक पूरी एक समझ ले एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग होगी स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से है, हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने। उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार। इतने ब्रेन्स लग जाए। आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया है। इस फिनोमिना ने ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁక్స్ ਤੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਉਹ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ। को पैदा नहीं किया। ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है, ये अगर आपको पता चल गया। अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में, तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये नहीं होगा कि आपको ये पता चल जाए कि इसने पैदा किया। वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है, क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है।
तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए, इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारे, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है, तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टेब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हायल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हायल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बॉल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तो क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। ता वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया? तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछते हैं दरख्तों को किसने बनाया? कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है, इस मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया? अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी इस्लाम तो इतने ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रुथ, वो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਨੇਚਰ, ਰੱਬ, ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਲੀਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।